धंधा चलाना ना हाँ कोई रोजी काम नहीं है। हाँ सबसे पहले यार गुर्दा होना चाहिए। हाँ इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है हाँ उनमें जो एनालिस्ट होते हैं, आई थिंक दे ओनली अंडरस्टैंड एक्सेल शीट्स। हाँ दैट्स द प्रॉब्लम। एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे अकाउंट, मतलब हमारे कंपनी के अकाउंट में 56 रुपए हैं सच एंड में? कल 20 लाख की सही में सैलरी देनी नहीं सही में कल 20 लाख की सैलरी देनी है। टू ऑल दी फेलो एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप एक लाइन में समझा नहीं पाते हो अपने धंधे को, हाँ Hi guys, I'm Priyanka and welcome to yet another episode of Beyond the Spotlight. Today I have with me Kushal Agarwal, who is one of the OG founders of the Indian startup ecosystem. Hi Kushal, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया एंड सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच ये टाइम निकालने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको बॉम्बे में आके बैंगलोर से? यहाँ पे कितने सोसाइटी ब्रांचेस खुलने वाले हैं? Yeah, I think we have a small office here. We have a group of around 20-25 people here. And Bombay is always special. It give me almost 10 to 12% of my overall business. अच्छा oh, nice. So I keep Nice. visiting Bombay. And yeah, it's super exciting to be here, meet people here. I mean, they actually are very receptive. That's what I've seen. Even the leaders, CEOs, etc. So in this 3-day trip, I met 4 or 5 CEOs, and all of them were a call away, very grounded, humble, very and nice to come and kind of be in Bombay. हाँ आई थिंक लोग आपके साथ हम्बल होते हैं बिकॉज आप खुद इतने हम्बल हो। यू आर ऑल्सो दैट पर्सन हु इज वेरी वेलकमिंग। तो आप हमेशा से ही ऐसे थे? I try to be, I try to help people as far as I can. There are rarely any instances where I was not able to help people. But जहाँ भी होता है I mean मेरे से जितना होता है I do it. So yeah, I mean, दैट्स अ वेरी नाइस वर्च्यू। तो आप बताओ कैसे ये स्टार्ट हुआ सारा जोजो डे का सफ़र? आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने MBA किया, फिर अगला स्टेप क्या क्या हुआ पूरा So process? during my engineering days, 4th year में एक कीड़ा था कि कुछ करना है, and I started a venture, a very small venture, मतलब where I thought my dad is works with Chhattisgarh government, and I saw a lot of inefficiencies there. So I thought that I can probably go and help him to structure, process things better, and all. And I tried building some kind of ERP or CRM for these guys. But at that time I realized that the officers were not ready. It was way back, I think 15-20 years back. And that was my first kind of venture where I built a lot of products around that. It didn't work It did, for obvious that's nice. reasons, but yeah, I got a lot of exposure. What all things goes inside starting a business. You cannot be super excited about any idea, because I mean, even if there is a market need, until unless you have customers, your idea is just in a scrap. Just like a scrap. So yeah, so that was a start. Post which I joined an MBA course. During my MBA, I used to meet a lot of kind of people. My presentations, when the teachers used to take, it was a little different than what people used to do. And in my second year of business, during my internship, I was doing an internship in Kenya. I was working with Bidco oil refineries. They sell these soaps and oils. And at that time, I knew someone, one of my other partner, I would say, Manoj Agarwal.
under whom I did a small internship earlier Okay. when it was he was with Flipkart at that time. So I knew him, and when I was in Kenya, he said that I'm starting a company, and would you like to kind of join? So during my third trimester into 2012, I joined him, and yeah, It all started there. just yeah, like it that. all started there. I thought it's a good team. हाँ Startup में सबसे important होता है team, हाँ very important. and I got a good team. My manager was my partner. हाँ. And funding, And money. money, yeah. So I asked my dad, I got a good team. Do you think I should invest? So I invested some small sum of money. Um, and yeah, here And we that's are. how it started. Yeah. तो शुरू के कितने साल काफी आपको वो 0 से 1 पे आने में लग गया, कितना टाइम लगा आपको? So we were blessed to have that business consistency right from day one. So एक चीज़ हमें बहुत क्लियर थी कि the business is all about making money. And cash flow is super important. You can't keep silent for for months and just be in a hope कि यार धंधा आएगा हाँ. and धंधा बन जाएगा. So we started my company's first name was Gift Zozo and Gift XOXO, and we felt that in gifting space there are hardly any companies. Huh. At that time it was just Archie's. And we felt that we can probably create a brand around gifting. So we took that name and we started into that gifting. We created a website. We tried multiple models कि group gifting होता है, बहुत सारी शादियाँ होती हैं, and when you go to a marriage, what to give to the bride and groom is a big question mark. So we thought we'll create some gift registry or let people to pool in money and give something bigger to the bride and the groom. So in Excel sheets it looked fancy. 50 लाख शादियाँ हो रही हैं और हर एक शादी में 10-20 हज़ार रुपये का गिफ्ट दिया जा रहा है. सो एक्सेल शीट में तो सब बढ़िया फैंसी लगता है कि भाई ये तो मतलब बहुत पैसे बनेंगे. बहुत पैसे बनेंगे. बट 3 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि हमारे दोस्तों की शादी थी, वहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे थे. हाँ. तो वी देन अंडरस्टूड दैट दिस इज़ नॉट अ बिजनेस वेयर वी शुड बी इन, और it's not a need of the market. So we shifted to another business which was around experience gifting. Right. We thought why not create those last mile experiences and activities. तो आज के डेट में लोग hotels, flights, train ये सब बुक कर लेते हैं online. But when you reach a particular city or when you want to enjoy a weekend, you want to do something. Right. And that is not bookable. हाँ. So we thought we will organize that market. Right. So we created that marketplace, raised some funds as well from Mahindra Group. And however, वहाँ पे भी हमारा ऐसा हुआ कि we were ahead in the market, and that business didn't took off so well. So in 2016-17 is when we thought let's get into some serious business. And we ventured into creating softwares. Okay. So पूरा B2B बना. yeah, essentially into a SaaS space. So we built a suite of products around rewards, incentives, and loyalty. And be it for customers, influencers, channel partners, sales teams, employees, after sales staff. So I have a suite of products through which you can automate and gamify incentives and reward programs for them. Okay. And that took off. That took off. So yeah, we have taken a lot of pivots. It's not a rosy story. It's yes. It was not like you started with the same idea और आज same idea से you're making money. आपको मतलब क्या लगता है, तो फिर आपका क्या कहना है कि कितने टाइम तक रुकना चाहिए बिफोर वो पिवट लेने से करने से पहले? I think one maybe mistake I would say what we did was
if you're failing now, then fail fast. Don't wait or linger around that, okay, it will work. A lot of times, my fellow entrepreneurs who are starting their journey, they come to me and they show me some random research which they might not have done, which was all their mind. Because I have also done that. Right. And they try to come and convince me कि okay ये ऐसा ही होगा. Excel sheet पे. यार वो नहीं होता यार. So I mean, if you're failing ना, fail fast and move on यार. उसको मतलब लिंगर ऑन नहीं करना. हमारा भी ये हुआ है and I'm sure other entrepreneurs also face that. They get very stuck to a particular idea कि यार ये काम करेगा ही करेगा. मेरे ख्याल से जो मार्केट डिमांड कर रहा है वो उसके फ्लो में you have to kind of sail the boat. Otherwise, I mean, it will take a long time. So I feel that the 12-year journey, I would have concised it if taken right decisions at right time. It could have been concised in 5 years. हाँ, मतलब वो इतना भी टाइम नहीं लगता. तो आपको लगता है बहुत लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं एक चीज़ को पकड़ के बैठने में. बट देन ऐसा भी होता है ना कि कई लोग का एक विजन है कि चाहिए 1 साल बाद चलेगा पर ये बहुत ही अच्छा चलेगा तो चलो 1 साल रुकते हैं. तो वो डिसीजन मेकिंग मतलब कैसे इतनी स्ट्रांग हो सकती है? There's nothing called as 1 year. You can't be hungry for 1 year, right? You have to do something for 1 year. You can't. I mean, वो अंदर से ही आ जाएगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं. Right. और वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप बैठ जाओगे, साल भर बैठ जाओगे, आप बिना कमाए. बट अंदर से फीलिंग आ जाएगी आपको कि यार मतलब what I'm doing. So you always have to create something which will or you have to get into something which will add some value or make money. Making money is really important. तो वो कितने महीने में आपके transactions दिख जाने चाहिए मतलब ताकि आप कह सको कि now it's going in the right direction? I mean, I feel there is no scientific way to tell that. If the transactions are coming, if you are seeing people buying or interacting or maybe कुछ substantial लोग अगर कर रहे हैं, which means things are working. Okay. Or will work. But अब यार कोई आ ही नहीं रहा है and you are in that fool's paradise कि आएगा एक दिन. That is bullshit. Right. और तो शुरू में जैसे आपका वो वाला दूसरा आइडिया जब आपने पिवट किया और महिंद्रा ग्रुप में आपने इन्वेस्ट किया लास्ट माइल एक्सपीरियंसेस तो वो मतलब वो पूरा इन्वेस्टमेंट फिर क्या जस्ट गोज ऐसे वेस्ट क्योंकि उससे कुछ नहीं निकला तो No, it's not like that. So whenever a PE fund or a venture capital invest in your business, they invest in the business, not the business, not the I mean, so they take equity in your company. Right. Okay. Your company, when they own some part of your company, I mean, jointly between the board of directors, you decide that okay, this business is not working out, so let us try something else. So it's a conscious decision. I mean, no one comes and say that कि भाई ये नहीं चल रहा है पैसे वापस करो. ऐसा नहीं होता है. तो स्ट्रेस कितना बढ़ा मतलब इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं पहले 2 साल की बात करूँ बहुत कभी ऐसा लगा कि oh my god this is too much stress जितना दिखता है बाहर से. Every day. तो बाहर से जैसा लगता है कि यार आप अपने बॉस हो मेरे जैसे कई लोग का आइडिया ही है बिजनेस करने का कि मुझे किसी के लिए काम नहीं करना. सो दैट शुडंट बी द रीजन राइट क्योंकि स्ट्रेस डजंट डिक्रीज है ना मतलब वो बढ़ता ही है सिर्फ. तो तुम मार्क जकरबर्ग से भी बात कर लो वो उतना ही स्ट्रेस होगा आज जब पहले दिन चालू किया था. तो कैसे So I mean it's a never ending story. तो वो स्ट्रेस शुरू में जब बहुत स्ट्रेस है कभी लगा नहीं कि यार लेट्स जस्ट गिव इट अप मतलब क्या जरूरत है. कई बार ऐसा लगता है बट यू नो जो लगता है आप उस फीलिंग के साथ आप सोते हो. एंड व्हेनेवर यू गेट अप यू फील अफ्रेश एंड यू फील हाँ यार आज ये काम करना. सो मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब वो ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मतलब ओके अब जाने देते हैं. मतलब एक एंटरप्रेन्योर अगर इंसान उस शूज में दे स्टेप इन देन दे कांट कम आउट. ऐसा नहीं है. They can come out. It is very difficult. Definitely it is very difficult. अगर कोई passionate है तो. I'm sure I have met so many entrepreneurs, entrepreneur friends who have taken an exit. They start feeling that
nervousness क्योंकि they are very workaholic. They work, I mean, we work more than 16 hours a day. And be it and all 365 days. It's not कि भाई हमारा Sunday Saturday होता है. I mean, you have to pick up You calls. have to pick up calls. So I've seen people who get really stressed out after exiting, और जब कुछ काम नहीं होता ना तो अंदर ही अंदर लगता है मैं क्या कर रहा हूँ. तो इतना काम करने की क्योंकि आदत होती है कि एकदम से वो नहीं हो सकता है, छोड़ नहीं सकते हो आप ऐसे ही. तो बहुत ही जो चीज़ मैं मतलब जिस चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ, एंड गोल क्या है, मतलब एंड गोल क्या है इन एंटरप्रेन्योर्स, टू कीप डूइंग इट टिल Make money, make money, lot of money. तो मतलब वो make एक money सबसे and motivating add some value in the to people. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब randomly कुछ करना है, but yeah, add value to people and or their businesses, right, and then make money. हाँ. So that's the ultimate goal. And yeah, so at some point in time, people have to exit. We might also have to exit at some given point in time if because now we are a PE-led venture. Last time when we raised capital, about 70 million or so. I mean, it's now very structured board. Right. So it depends on the company's performance, and you have to be prepared that okay, there is someone above you, or there are a group of people above you who can fire you. So ऐसा भी हो सकता है क्यों नहीं हो कभी सकता? कोई मतलब मेरी कंपनी है और मतलब मेरे ऊपर कोई बॉस आ सकता है, क्यों नहीं मतलब आ सकता है. तो ये सारी चीजें पर्सनली इफेक्ट नहीं करती इंसान को कि यार मतलब एक ईगो पे आना किसी चीज हाँ, का मतलब कि acceptance is the key. So हाँ. you have to accept यार आएगा तो फिर हाँ. either you have to exit हाँ. or you have to accept. ओके. It's not that कि यार वो linger around करने का वहाँ हाँ. पे. तो acceptance is इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस इज वेरी. and it's natural also. धंधा बढ़ाना है, right? हाँ. और धंधा बढ़ाने के लिए इधर यू हैव टू धंधा बढ़ाने के लिए या तो तुम करो या कोई और करेगा. जो फ्लो है वो स्टॉप नहीं होना वो चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए. एंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मतलब हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, दिस फंक्शन, सो आई शुड स्टेप डाउन और वर्क अंडर समवन एंड टेक फॉरवर्ड द कंपनी. हाँ. तो ये बिजनेस एक्यूमेन ये हमेशा से ही था, बचपन से, या फैमिली में कोई बिजनेस करता था? My dad is a government servant. अच्छा. And he just retired. हाँ. But yeah, no, तो कोई भाई कोई भी नहीं करता था, सिर्फ मामा you are की the- फैमिली है बिजनेस हाँ. में. बट मेन अगर देखें आपकी जनरेशन से सर्विस, तो यू आर द सर्विस one. फैमिली. ओके. तो ये जो शुरू के दिनों में मतलब क्या पर्सनल लाइफ के जो स्ट्रगल्स इंसान के रहते हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे, राइट? या फिर आपस में फाउंडर्स की नहीं बनी मान लो, तो उससे जो इमोशनल इम्पैक्ट है, मतलब उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और कैसे लोग उस सिचुएशन में कुछ अपने आप को समझा सकते हैं, आपस में नहीं बनी या पर्सनल इश्यूज हो गए लाइफ में, ऐसा कुछ? हो गए यार. मतलब कुछ भी दिल पे लेके नहीं रहना. आप कभी नहीं दिल पे अपने चीजों को लिया नहीं लेंगे यार, या ये टाइम के साथ सीखा आपने टू लेट इट गो? बिल्कुल लिया दिल पे. ऐसा मैं भी इंसान हूँ यार, हाँ. मतलब आई विल गेट हर्ट. हाँ. बट वही है कि अब सामने वाला अगर ही अंडरस्टैंड्स यू and you understand him, and there can be two scenarios. One, यार वो अगर बंदा तुमको समझता है and if you feel कि यार he is very important person for you, then और अगर उससे तुम्हारी लड़ाई हुई है तो it impacts. And founders का मुझे ऐसा लगता है कि because we were 5, I mean previously 4, and then my other co-founder Abhimanyu joined us later. मतलब हमारे बीच में it is like कि अगर लड़ाइयाँ भी होती हैं so 5 लोग हैं तो कोई ना कोई एक मीडिएटर बन जाता है. बिल्कुल. And that person mediates and try to solve the problem. So at end of the day we are kind of together. आप भी मीडिएटर बनते हो क्या? हाँ, मैं भी बनता हूँ कई बार. लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने में मैं भी बनता हूँ. क्योंकि आप मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि मैं सबसे यंग हूँ फाउंडिंग टीम में, एंड
मैं थोड़ा रेडिकल और हाँ। थोड़ा रेडिकल अप्रोच रहता है मेरा, हाँ तो हाँ मेरे से तो बहुत लड़ाई होती है सबकी, चारों चारों से, बट ठीक है, दे ऑब्वियसली हो जाता अंडरस्टैंड है। कि यार आई एम नॉट डूइंग एनी हम्म। इलॉजिकल फाइट्स, हाँ होती भी हैं कभी, हाँ बट वेरी रेयर। सही है, सो बट यू ऑल गेट ऑन द सेम पेज या बाद में। तो सो पिच। व्हेन वी डिसाइड अमंग आवरसेल्फ दैट ओके दिस इज हाउ विल डू, हम्म। तो फिर बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में भी नेवर शो कि यार वी हैड दिस किसी को नहीं पता चलता कि आपका disagreement है। इंटरनल तो बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा। और वो आपस में सुलझ जाते हैं, और वो बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि अगर कंपनी को चलाना है अच्छे से तो कभी बट गिव अप की फीलिंग नहीं आई कि छोड़ते हैं ना, लेट्स जस्ट लेट दिस बी, और रहने देते हैं बस अब जो यार आई वुड बी रॉन्ग इफ आई से नो, हाँ। कई बार आया है, हम्म। एंड a lot of time we have discussed amongst ourselves also, हम्म। बट एवरी टाइम somehow वो अंदर से एक वो होता है ना कि यार लेट्स कीप गोइंग, लेट्स कीप गोइंग। वो वाला आया है कई हाँ। बार, एंड वी हैव सस्टेन्ड दिस लॉन्ग। हम्म। I remember 2015 16 17 के आसपास every damn startup idea was getting funding, हाँ सबको यार, मतलब जो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, जिनका कोई सबको एकदम मिल- बिजनेस मॉडल, मतलब एक लाइन का बिजनेस हाँ। है, उसको फंडिंग मिल रही थी, हाँ 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 एंड वी फेल्ट दैट यार हमको क्यों फंडिंग नहीं मिल रही। हाँ हाँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हाँ। वेर, यू कैन से, काइंड ऑफ बूटस्ट्रैप्ड, हाँ वी रेज सम छोटा छोटा पैसा, बट हाँ। इट वाज ऑल पीनट्स। हाँ सो हमेशा हमको लगता था यार हम पैसा बना रहे हैं, हाँ हम मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, वी आर हाँ। ग्रोइंग डिसेंट, मतलब 60 70 80 100% ईयर ऑन ईयर, हम्म। तो पैसा क्यों नहीं दे रहा कोई। हम्म। तो मेरा एक इन्वेस्टर है, एक मतलब आई मीन एक प्रोबेबल वीसी था, एक बार मेरे को बोला कि क्या यार कुशल तुम हर 6 महीने में आ जाते हो मेरे पास, तो मैंने बोला मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, फिर तो हर काम 6 महीने में आऊँगा मैं विद इम्प्रूव नंबर्स, ठीक है, टाइमिंग आपको डिसाइड करनी है, हाँ। पैसा कब दोगे, हाँ बस फिर ये मनी हाँ उन्होंने दिए पैसे, नहीं दिए नहीं, बट आप मतलब यू बट आई सेड एज यार अ कंपनी। यार एज एन एंटरप्रेन्योर आई हैव टू कीप ट्राइंग। हाँ मतलब नो इज समथिंग जिससे डरना नहीं है लोगों को कि यार फंडिंग नहीं मिल रही है, नहीं मतलब बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। you have to be afraid, or you have to read the market हाँ well, हाँ। मतलब you can't keep यार linger on करते जा रहे हैं। बट आपको क्या लगता है क्या रीजन ऐसा होता है कि नहीं मिल रही है फिर भी फंडिंग, जैसे आपने बोला जो क्वेश्चंस दैट अराइज्ड इन योर माइंड कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो आपको क्या जवाब मिला अगर ऐसे मैं पूछूं कि क्यों नहीं मिलते हैं लोगों को फिर फंड्स व्हेन दे आर डूइंग वेल? हज़ारों रीजंस होते हैं यार। एक इन्वेस्टर बोलता है कि यार मेरे को फील नहीं आई इसलिए नहीं दिया। अरे क्या फील यार, क्या फील के लिए तो पैसा डालता है क्या? ओके, तो सबके अपने अपने रीजनिंग सबके अपने अपने होते हैं यार। एंड ऑफ द डे मतलब what people or investor sees how much money they would be able to make. हो सकता है कि हमने अपनी कहानी अच्छे से बताई नहीं उनको। हो सकता है उनको फाउंडर्स में कन्विक्शन नहीं आया। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस यार व्हाई इन्वेस्टर्स वोंट इन्वेस्ट। एंड एक और आई शुड नॉट से दिस बट इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है उनमें जो एनालिस्ट होते हैं, I think they only understand Excel sheets. That's the problem. I mean, if the P fund or VC community will have more entrepreneurs, I think then there will be radical change in the system. Because they will understand. क्योंकि यार आप जब छोटे होते हो ना, अब मैं अभी current state की बात कर रहा हूँ, आप छोटे होते हो तो you don't have so much of numbers to show. Right. इट्स अबाउट दैट, वो बोलते हैं ना फाउंडर की आंखों में आंखें जो हैं वो एक फाउंडर ही देख सकता है, वो मतलब एक एनालिस्ट नहीं देख सकता। हाँ मैं समझ गई कि आपका कितना पैशन उस आइडिया को लेके और कहाँ आप उसको लेके जाना चाहते हो। बट जो so I feel that it's a suggestion to the VC community to hire entrepreneurs here to kind of fund startups. They know real
kind of pain and understanding about. They don't. I mean, analyst. They just are Excel managers. हाँ, और इस वर्ल्ड में फिर रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं? जैसे अगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं वीसी में भी किसी को रेफरेंसेस ही जानती काम हूँ, करते हैं. तो दे हियर यू, और अगर आप किसी को रेफर करोगे या इन्वेस्ट इन प्रियंका, Of course. दे वुड. सो वर्ड ऑफ माउथ रियली वर्क्स. Yeah. तो इसका मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि लोग एक मतलब नेटवर्किंग करते रहे, मतलब जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारा एंटरप्रेन्योर करता ही है. हाँ. ऐसा नहीं करता है. सब नेटवर्किंग करते हैं. हाँ. बिकॉज देयर आर इंट्रोवर्ट्स आल्सो, मतलब बहुत सारे लोग बहुत ऐसे रेयर हैं होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योर जो इंट्रोवर्ट होते हैं. बाकी करना ही पड़ता है. दिस इज करते ही हैं. करते ही हैं. Yeah. ओके. You are also an entrepreneur, right? You can't keep quiet. अगर Right. बिजनेस में कोई स्ट्रेस है या आपका let's say you want to raise capital, you will hustle around. हाँ. You will try to raise capital. पर शुरू में वो बूटस्ट्रैप वाली सिचुएशन थोड़ा निकलना ही पड़ता है. मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नंबर्स नहीं है दिखाने के लिए, उन लोगों के लिए मेरा मतलब उनके लिए मैं कुछ वो तो वहाँ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड ही चलता है. ओके. तो नंबर्स चाहिए, इसका मतलब कि अगर किसी के 3-4 पेइंग कस्टमर्स है, इज दैट आल्सो इनफ? और विजन बहुत स्ट्रांग है या एक भी चलेगा? मतलब कोई भी, मतलब यार बस ट्रैक्शन दिखाना है. योर डैड कैन आल्सो बी एन इन्वेस्टर, राइट? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है. बट अगर मैं मान लो आप इन्वेस्टर हो और मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ दिस इज द आइडिया एंड वी हैव 2-3 पेइंग कस्टमर्स एंड माय विजन इज दिस, तो वो 2-3 सामने वाले को कन्विक्शन आना चाहिए. अच्छा. तो ऐसा नहीं कि यार एक हाँ, कस्टमर मतलब वो मेरे को तो लगता है यार इट्स ऑल अबाउट गट फील. वो एक्सेल शीट्स आर गुड, बट वो गट फील आती है ना, तो ही इन्वेस्टमेंट में उसको लगता है यार हाँ आगे बढ़ा. राइट. और आई थिंक ये वो इन्वेस्टमेंट की जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन जनरल कैसे हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता होगा ना. मतलब अगर आपके पास 2 ऐसे फाउंडर्स आ रहे हों, मतलब जिनको देख के आपको लग रहा है कि ये लोग उतना काम नहीं करेंगे, वर्सेस 2 लोग को देख के आपको लग वही गट फीलिंग अगेन. हाँ, तो अगर ये लोग बहुत काम आई इन्वेस्ट इन usually this is a very common saying in this field, B idea with A team, then A idea with B team. हाँ, मतलब तो मतलब idea is okay. हाँ. I am okay to invest in Me Too ideas. But टीम अच्छी होनी चाहिए. टीम अच्छी. टीम में होना चाहिए यार हाँ कुछ कर देंगे. And मतलब these days I prefer to invest in Me Too business than an innovative idea. क्योंकि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया ना तो क्या होगा कि यू नो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एजुकेट द कस्टमर्स. दैट्स ट्रू. है ना, वो मतलब बहुत टाइम लगेगा फिर तो, मतलब उसको बनाने में इतना टाइम लगता है इसको कोई मतलब नहीं है. सो अगर आप मी टू आइडिया में करो, मी टू मतलब बहुत सारे आपके कंपटीशन है, व्हिच मींस मार्केट भी बहुत बड़ा है. तो एंटर इनटू दैट विद सम छोटा सा ट्वीक इन द बिजनेस मॉडल. आई लाइक दैट. मतलब क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग. बट स्टिल मैं आपका पर्सपेक्टिव इस पे जानना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि बहुत सारे इसमें भीड़ है तो ये नहीं करते हैं, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. यू शुड गेट इनटू दैट बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे हैं. ऑलरेडी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है. और दूसरा चीज, क्योंकि यार तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं ना. कि लोग खरीद रहे हैं वहाँ पे. बिल्कुल. सो व्हाई टू डू अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट? इट्स ऑलरेडी देयर. जस्ट ट्वीक अ बिट सो दैट आपका वो जो कस्टमर्स वो खरीद रहे हैं ए वर्सेस फिर आपका खरीदेंगे. और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, दैट इज called as market sizing in terms of VCs and जो corporate presentation होते हैं. यही तो market sizing बन सकती है. यही market sizing है. You can give examples also कि देखो शुगर ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव. तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. सो लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं जब कुछ स्टार्ट करते हैं, राइट? तो शुरू के टाइम में नहीं आएगा कोई ट्रैक्शन, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे उन्हें बिल्कुल ही एकदम छाती ऑफ स्टील चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे फर्क पड़ेगा. तो कैसे अनअफेक्टेड रहा जा सकता है फॉर फर्स्ट गुड 6 months? आई गेस यू यार अफेक्टेड ही रहोगे. अच्छा. ओह, एंड यू शुड बी अफेक्टेड. हाँ, मतलब ये होगा. देखो यार, मतलब धंधा चलाना ना या स्टार्टअप चलाना कोई रोजी काम नहीं है. सबसे पहले यार गुर्दा होना चाहिए. यू शुड हैव गट्स टू स्टार्ट.
यू शुड हैव गट्स टू थिंक यार साल 2 साल मेरे पास अगर मैं 1 रुपया भी नहीं कमाऊँगा हाँ तो मेरा मतलब मैं चल लूँगा. हाँ एंड मतलब मेरे ख्याल से यंग एज में इट्स रिलेटिवली ईजी. हाँ बट अगर आप कोई मैरिड हो या यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी टफ. that's right. हाँ सो बहुत सिंपल है यार कि मतलब अगर अभी आप जितना काम कर रहे हो उससे 100x काम कर सकते हो हाँ बिना पैसे के. हाँ तो फिर कूद जाओ यार. खुद जाओ. तो शुरू में आपने भी नहीं कमाया पैसे? शुरू के I 1-2 was साल? not I was not drawing salary for first 7-8 years. तो मतलब आपको शुरू 6-7 में आपने years. सोच रखा था क्या कि पैसे अभी मेरा प्रायोरिटी, बाद में तो आएंगे, पैसा विल फॉलो, बट शुरू में मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. I got recruited by a large IT company, हाँ IT analytics company, and I left that company right on the first day. हाँ तो जब मैं See, आप लंच guts हुआ, है. पहले कुछ ट्रेनिंग वेनिंग हुआ, फिर हाँ. लंच हुआ. लंच में 5-6 हज़ार लोग कैंटीन में खाना खा रहे हैं. एंड आई फेल्ट यार मतलब इतने सारे लोगों में मैं मतलब हाँ, मैं कौन बैठा हूँ? हूँ. आई फेल्ट वेरी वेरी मतलब अजीब सा. हाँ आई कांट एक्सप्लेन दैट. हाँ तो मैं तो लंच में ही वापस चला घर आ गया. पापा ने कुछ नहीं बोला बेटा, मतलब My ये तो dad सब got to करते know हैं after ना. a month अच्छा. when he got a call कि हाँ. your son is not coming. तो आपको ये लगा कि मतलब तो नौकरी तो करनी होती है, जैसे कुछ सीखने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि तब बनेंगे बिजनेसमैन, पहले 1-2 साल सीख लेते हैं अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार. ऐसा कुछ नहीं है, पैसे जोड़ लेते हैं या फिर मतलब अगर factor should अगर not be ये the- फैक्टर है ना कि यार एक दो साल सीख लेते हैं फिर करेंगे, ये हाँ. मतलब ये बकवास तो आधे लोग तो इसीलिए डरे हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा जोड़ लेंगे 2 साल में, बकवास तो philosophy. हाँ कि शुरू में क्योंकि पैसे नहीं आए तो लगाने भी पड़ेंगे, सो लोग ना किसी वजह से रुके यार हुए हैं. पैसे का ना सोर्स बन जाता है अगर जज्बा है तो. हाँ इफ यू हैव दैट इफ यू हैव दैट इंटेंशन ना, हाँ मतलब कि करना है, हाँ तो तरीके निकल जाएंगे. हाँ वो सोचते रहोगे कि यार 2 साल बाद सीखेंगे फिर करेंगे. हाँ. ऐसा नहीं है यार. इट्स रन द जॉब, मतलब हाँ इट्स ऑन द जॉब यार. राइट टाइम इसीलिए काफी लोगों के लिए आ भी नहीं पाता है. हमारे पास इतने डिसीजंस आते हैं एवरी डे. आई टेक एटलीस्ट 10-20 डिसीजंस हाँ व्हिच आई माइट नॉट हैव टेकन बिफोर. हाँ राइट. तो यू लर्न फ्रॉम दैट एंड मिस्टेक्स होते हैं. आई डू मिस्टेक्स. कभी लगता है कि स्टूपिड मिस्टेक्स भी बहुत किए हैं. सारे. हाँ, तो मतलब स्टूपिड ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रूल बुक कि ऐसे ही होता है. नहीं होता कुछ. कुछ चीजें आप खुद की गलतियों से ही सीखते हो, Yeah, yeah. मतलब आप किसी से ऐसे सीख नहीं सकते, खुद करते हुए समझ आता है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जब कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो कनेक्टेड होते हैं किसी आइडिया से. जैसे आई लव फैशन, तो मैंने मान लो ज्वेलरी स्टार्ट कर दिया बिकॉज मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है. बट कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि व्हाट इज ट्रेंडिंग. जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, लाइटें बेच देती हूँ बिकॉज आजकल इंटीरियर बहुत कर रहे हैं लोग, तो ये कंपनी खोल देते हैं. या फिर वेडिंग्स बहुत हो रही है बट मेरा कनेक्शन इतना नहीं है उस एरिया से, बट एक कैफे खोल देते. तो कैसे डिसाइड होता है आप कोई भी एक पकड़ो और एग्जीक्यूट. कोई भी मतलब दिल का उससे आपके लिए कितना पर्सनली, जैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मेरा दिल बहुत जुड़ा हुआ हो, तो आपके लिए ट्रेंडिंग दिल कॉम्बो व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू. तो SaaS वर्ल्ड चल रहा है तो SaaS में ही करना है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि चलो यार SaaS itself is very big यार. हाँ, मैं SaaS वही मतलब बोल- वो थोड़ी ना होता है कि उसमें बहुत सारे आइडियाज है भाई. अब वही मैं जैसे फॉर एग्जांपल HR करना so है, let's ये say करना है. let's say if I feel that okay, or if I have zeroed down कि मेरे को एक SaaS कंपनी चालू करनी है, हाँ हाँ तो what I will do हाँ as maybe as an early guy in an entrepreneurship space would be I will go and I will go to Google. I will read the keywords what people are searching. हाँ So I'll take a couple of keywords जैसे CRM है, तो I will see कि क्या CRM जैसी चीज़ लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. हाँ या लेट्स से मेरा इंसेंटिव मैनेजमेंट या इंसेंटिव ऑटोमेशन का है, तो आई विल सर्च कीवर्ड्स अराउंड दैट कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं. right. या लेट्स से इफ आई एम मेकिंग सम पेमेंट सॉल्यूशन, हाँ आई विल गो एंड आई विल सी कि वो वैसा कीवर्ड कोई सर्च कर रहे हैं. हाँ तो वहाँ से आई विल गेट सिग्नल्स दैट आर पीपल सर्चिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग. राइट. आई विल गेट सिग्नल्स टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. हाँ फिर उसका डीप Okay. रिसर्च होगा. That will be a logical approach
to kind of take, क्योंकि अगर CRM let's say सर्च कर रहे हैं, which means there are many number of buyers, right. है ना, and then I'll search कि कितने companies हैं who are making CRM. हाँ. I'll get many number of, तो you have many sellers, many buyers, get into it. बट उसमें बीट में सबसे ज्यादा ये डर लगता है ना कि B2B में थोड़ा शुरू में कंपनीज को नहीं, I'm just giving you an example. That will be a point to start. That will be a logical way to approach a SaaS business. Right. Where I am in. अगर आप कैफे में जाओगे तो you will have to go to maybe any specific area and see कि यार वहाँ पे लोग आ रहे हैं क्या. Right. ठीक है, कितना पे कर रहे हैं, क्या है. So do a primary research. Primary research is very important. Secondary वगैरह वो जो again वो data analytics, don't do paralysis of analysis. Just go there, see कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं क्या, कितने क्या हैं. Do a small pilot, maybe with some, अगर कैफे खोलना है तो एक एरिया जहाँ पे लोग आ रहे हैं, खोलो छोटा सा कुछ, भले ठेला खोल लो यार, वहाँ से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करो, वहाँ पे अगर आ रहा है तो फिर ले लो दुकान भाड़े पे, ओपन कर लो. So मतलब hands on होना है. You have to be ready to get your hands dirty, do primary research, do a proof of concept as early as possible. फिर you scale, क्योंकि वहाँ से insights आपको ऐसे मिलेंगे जो which will help you to kind of expand. Otherwise ये ख्याली पुलाव में एक्सेल शीट्स में धंधा नहीं होता भाई. और ख्याली पुलाव तो बहुत लोग एक्चुअली बनाते हैं, मतलब ये कर देंगे स्टार्ट, वो कर देंगे, और वो कभी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब लोग बस सोचते ही रह जाते हैं. तो आई थिंक वो एक्शन लेने वाला चीज से जो वो आई थिंक मे बी अंडरलाइंग फैक्टर इज दैट फियर कि कल को नहीं चला तो जॉब भी छूट गई. यार अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो ना, and if you have started and if you have struggled wholeheartedly for 6 to 12 months, I mean you will I mean जो अंदर से आपका जो पेशेंस लेवल, आपका जो नॉलेज लेवल, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग लेवल पे होगा. अगर आप रियल करे हो, घर पे बैठे नहीं. बिल्कुल है ना. मेरे कंपनी में out of close to 500 employees, मेरी कंपनी में I have more than 100 entrepreneurs. मेरा तो ऐसा होता है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो आई गिव हिम प्रेफरेंस, भले ही वो उस फील्ड का ना हो, क्योंकि वो हसल करके कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल लेगा. राइट. मतलब वो बन जाता है, वो हसलिंग एटीट्यूड, फिगरिंग आउट एटीट्यूड वो बन जाता है अगर है भी नहीं किसी का, मान लो. तो आपको लगता है कि एंड आप जब उससे बात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो हसल किया है कि नहीं किया है, कि वो फांकी मार रहा है. मुझसे बात करके क्या पता चला आपको कि हसल किया है कि नहीं, मैंने बता दो. अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताओगे. ठीक है, क्या पता कोई इसको सुन ले, उन्हें समझ आ जाए कि हाँ देखो प्रियंका ने. नहीं यार, आई थिंक दिस पॉडकास्ट एंड you know you always had been into this space, so I feel that मुझे ऐसा लगता है कि you can do it. अच्छा, तो फैमिली तो must have been really proud, मतलब all these. Yeah, they feel good about what I'm doing. Your wife, your kids. There was an interesting conversation which happened, I think, in 17, 18. So I was featured in CNBC, and you know I went to my grandfather, and उन्होंने बोला कि बेटा तेरा पापा आके मेरे को बहुत कुछ बताता है, टीवी में दिखाता है, बट बेटा तू ये बता तू करता क्या है. अच्छा. बहुत ही सिंपल सा सवाल था. उस समय वी वर इनटू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज वाला. तो मैंने उनको अंग्रेजी में बहुत कुछ मतलब आधा घंटा तक समझाने की कोशिश किया कि हम ये करते हैं वो करते हैं. तो मतलब मेरे दादाजी फिर आधे घंटे हाँ वो कर रहे थे. फिर वो मैं पूछा उनसे आपने क्या समझा, तो उन्होंने बोला कि मेरे को समझ में आ गया तू ट्रैवल एजेंट है. मैं यार आई वाज मतलब मैं मतलब मेरा मतलब वो हो गया कि यार क्या मैं ट्रैवल एजेंट हूँ. सो देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार आपका जो बिजनेस आइडिया है, जो भी धंधे का मोड है,
यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन वन लाइन. राइट. हाँ. अगर आधा घंटा लग रहा है तो धंधा नहीं है भाई. हाँ, और नहीं चलेगा वो. हाँ, नहीं चलेगा वो. हाँ, So this is first you can say filter हाँ, to all the fellow entrepreneurs. अगर आप एक लाइन में समझा नहीं पाते हो अपने धंधे को, हाँ, मतलब यार यू आर इन रॉन्ग, यू आर वर्किंग हाँ, ऑन अ रॉन्ग आइडिया, हाँ, और you have to work on that idea, हाँ, pitch and make it short and crisp. हाँ, तो फिर मैं मतलब एक हफ्ते सो नहीं पाया था हाँ, कि भाई मैं अपने दादा को समझा नहीं पा रहा हूँ हाँ, business. ऐसा कोई साइंटिफिक तो है नहीं कि भाई हाँ, मैंने रिसर्च करके आया है और हाँ, वो मॉलिक्यूल बना दिया मैंने और वो सब. हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस. वहाँ से फिर मेरे को आया कि भाई यू नो टू एक्सप्लेन इन वन लाइन कि आज के डेट में आप होटल, फ्लाइट, ट्रेन ये सब बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, बट उस शहर में जाने के बाद क्या करना है दैट इज़ नॉट बुकेबल. तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज और डिजिटाइज दैट लास्ट माइल एक्टिविटीज. हाँ, कितना छोटा हो गया. बहुत छोटा. हाँ. उसके पहले तो 20 मिनट में समझा नहीं पड़ा था. जोजो डे का वन लाइनर क्या होगा अभी फिलहाल? Zozo Day, basically, we have built a suite of products, software products, around incentives, rewards, and loyalty initiatives. Okay. So, typically, it exists in different shapes and form. One can be one can be for your customers. You have credit card, you swipe and you earn points. That's one kind of software I make. Then second product is all about influencers. Okay. आपके घर में प्लम्बर आता है एंड प्लम्बर बोलता है कि मैडम ये वाला ब्रांड का नल लगाओ. हाँ, तो उसको भी मिलेगा. तो उसको मिलता है, तो दैट इज इन्फ्लुएंसर लॉयल्टी. सो आई हैव अ प्रोडक्ट फॉर दैट. देन आई हैव समथिंग फॉर ट्रेड पार्टनर्स और चैनल पार्टनर्स. तो आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारों का हार्डवेयर का शॉप होता होगा, पेंट का शॉप होता है, उनको टीवी मिल रही है, फ्रिज मिल रहा है, वाटर हीटर मिल रहा है. सो ऑल दोज आर स्कीम्स. Okay. So we help companies to automate that schemes. Right. Then I have something for sales team, Right. sales incentive. Then I have something for employee R&R, and maybe after sales staff. So I have a suite of products. Okay. To automate rewards, incentives, and loyalty program. Yes. So मतलब I took a long time. No, but I understood. But I tried to yes. keep it, cut it. I got that one-liner from your conversation because you said it first. That in short, it is digitizing. You're basically digitizing and automating the incentive part, the rewards part, loyalty part. It exists everywhere. It's in your daily any life. industry, B2C or B2B. Yeah. Professional और पर्सनल लाइफ में कुशल जैसे उसमें क्या फर्क है? You should ask my wife. हाँ, आप ऐसी हंसी मजाक. I think there is no personal or professional life in an entrepreneur's journey. मजा भी आता है बनता काम करने में क्योंकि वो इतना रिवॉर्डिंग होता है. तो अगर मैं बोलूँ 12 साल पहले वाले कुशल और अभी वाले कुशल में क्या डिफरेंस है ओवर द पीरियड ऑफ these 10 years, 12 years, कितना आप में बदलाव आया है इन जनरल? यार मतलब इनसेन. हाँ, बच्चा था मैं वहाँ पे यार, मतलब एंड आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट बिजनेस. आई थॉट यार आई नेवर न्यू कि हाउ पीपल अर्न मनी. I've earned that hard way to earn money. First 6-7 years when I was not earning anything, मुझे बहुत ऑब्जेक्शंस मिलते थे फैमिली से कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त देखो उनकी 50-50 लाख सैलरी हो गई है, तुम क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट काइंड ऑफ डूइंग समथिंग रैंडम. सो मतलब आई वाज मतलब lot of times when we were not able to raise capital, I always felt कि यार मतलब क्या गलत कर रहा हूँ. लाइफ में कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? सही में 7-8 years से I'm not earning that money. And you also feel bad taking money from your parents from that long. Yes. And मतलब वो होता है यार. तो पर आप ऐसे थे कि करते ही जा रहे हैं. बड़ा मेरे डैड को बिलीव था, मॉम को बिलीव था यार कुछ ना कुछ तो करेगा. तो वो क्या होता है कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है
जहाँ पे रैपिडली देन यू ग्रो, हाँ राइट? सो फिर उसके बाद सब आपका ऐसे रॉक बॉटम स्टेज भी था कोई जहाँ पे मतलब यू वर लाइक रियली इमोशनल विद द डिसीजन मेनी टाइम्स, ऑलमोस्ट आई मीन साल में 1-2 बार होता ही है। मतलब वो इमोशंस आते हैं, हाँ ऐसा यार, नहीं है कि मतलब आपके बहुत यार, पैसे बन गए तो नाउ यू आर लाइक अब तो सब नहीं सॉर्टेड है। यार, नहीं नहीं, अब हो गया, यू वर्क वाह। मोर आफ्टर गेटिंग मनी, हाँ एंड पैसे जब नहीं थे हाँ तो ऐसा लगता है कि आई वॉज इवन हैप्पियर। देयर इज नो एंड टू मेकिंग मनी हाँ। यार, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। हाँ मतलब अभी आप सोचते रहो कि यार ये इतना बनाना था, वो तो मैं नहीं। इतना बना नहीं, हम्म। या स्टिल यू आर वेल टू डू यार। मतलब यू अभी ये तुम अगर यू शुड कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल हु कैन नॉट ईट एनीथिंग, यू डोंट हैव मनी टू फीड देयर फैमिली, उतना तो कमा लिया यार। पर्सपेक्टिव सो वो मतलब देयर इज एंड, नो एंड टू मेकिंग मनी। हाँ वो इलॉन मस्क को भी ऐसा लगता है कि यार मैं ट्रम्प कब बन जाऊँ। हाँ मतलब वो एक ऐसे रेस में आप रहोगे हमेशा, सो यू हैव हमेशा टू यू विल बी देयर। स्टॉप, Yeah. रिलैक्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। या कई बार ऐसे सिचुएशन हुए थे कि भाई मंथ एंड में तुम्हारे अकाउंट में, एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे अकाउंट, मतलब हमारे कंपनी के अकाउंट में 56 रुपए हैं, सच एंड में? कल 20 लाख की सही में सैलरी देनी है, नहीं, सही में कल 20 लाख की सैलरी देनी है। तो एंड तो मोमेंट में उस ऐसे समय जो फटती- फटती है ना, हाँ वो आप सीरियसली लाइक यू हैव नो मनी नो मनी and you have to give money to people, my god। और ऐसे situations एंड यू हैव टू एंश्योर। हाँ इन जोजो डे एक चीज़ हमने कंसिस्टेंट रखी है हाँ। आज तक, वी हैव पेड आवर एम्प्लॉय सैलरी ऑन 1st of every month, चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसे situations जो बहुत ही भारी भरकम इस तरह की situations है, उनसे फिर आप लोग कैसे बाहर मांगोगे निकलते दोस्तों से, पापा से। हो? और जुगाड़ना है Yeah, एक ही yeah. रात में, एक ही दिन में जुगाड़ना है, my god। और फिर उन लोग को भी वापस करना है, वो भी प्रेशर। मतलब शुरू का 2-3 साल या 7 साल 8 साल आपने वो प्रेशर देखा है आए दिन, कभी ना कभी कुछ ना कुछ फटते हुए। 2014 में हाँ वी हैड ऑलमोस्ट ज़ीरो फंड्स, हाँ ठीक है, हमारे करीब 40-50 एम्प्लॉयज़ हो गए थे। दे केप्ट आस्किंग कि यार मतलब कुछ होना चाहिए, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग लिया था, हाँ ठीक है, एंड भूतिया टाइप ही था, मतलब ऐसा समझ लो, बिकॉज स्टार्टअप्स को आपको सस्ते में तो ऐसे ही हाँ मिलेंगे। हाँ सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी कराना था, देयर वेर a lot of interns also we brought on board. So what I did was I thought यार मेरे को मतलब मेरा ऑफिस भी ख़राब है, एंड यू नो एम्प्लॉयज़ को एंगेज भी करना है, पैसे भी नहीं है, पैसे क्या नहीं, करूँ? क्या करूँ? तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि लेट मी ऑर्गेनाइज अ पेंट डे। हाँ तो मैं बोला कि यार पूरा ऑफिस को पेंट कराने में 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है। हाँ तो मैं बोला कि वी विल टुमारो देयर इज अ पेंट डे। मैं 6-7 हज़ार का पेंट लेके आया, ब्रश लेके आया, एंड मैंने बोला पेंट योर ओन वॉल, एंड सबसे मैं काम भी करा लिया, और सबको समोसा खिला दिया, और हंसे सब लोग, मस्ती सब की लोग होगी करे, सबने। मस्ती की, एंड इट वाज ग्रेट फन। पूरे वीकेंड में मेरा पूरा ऑफिस में पेंट हो गया, और सब पीपल वेर एक्साइटेड। एक वॉल में मैंने थोड़ा सा एंगेजमेंट टाइप अपना अपना हाथ लगा दो वो करा दिया, एंगेजमेंट यार 10,000 में बढ़िया एंगेजमेंट हो गया, एंड माय ऑफिस वाज पेंटेड, पीपल फेल्ट गुड कि भाई ओके ये प्लेस, ये जगह मेरा है, मैं यहाँ पे बैठूंगा। पीपल ड्रॉन दोज स्केचेस अपने अपने वॉल पे, बहुत बढ़िया था, एंड इट वाज एक्साइटिंग। सो engagement of employees, I feel that it's not related to it's not actually related to just money. It's about building that right I mean if you go with the right mindset you will be able to build it. बट आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये कि एम्प्लॉयज खुश रहे बहुत ज्यादा? क्योंकि कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब दे गिव एम्प्लॉयज को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इवन इफ दे आर रेजिंग क्वेश्चंस कि मेरा मैनेजर ऐसा है, ये नथिंग चेंजेस। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? ठीक है, तो आपको लोग आके जब कंप्लेन करते हैं कि मतलब मान लो बहुत सारे रिव्यूज आपको ऐसे दे रहे हैं कि
मेरा मैनेजर ऐसे है या ये चीज खराब है, ये वो, तो हाउ डू यू मैनेज सच सिचुएशंस जब सारे एम्प्लॉय 2-4 बार ट्राई करो कि भाई मैनेजर से सुलह करने की, अच्छा बैठ के फ्रैंकली बात करो हाँ। भाई प्रॉब्लम क्या है, हाँ ठीक है. एंड मतलब आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड इन अ सिचुएशन वेयर यू नो एम्प्लॉयज मेरे पास पहले आते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हाँ दैन द मैनेजर्स. हाँ तो बिकॉज आई एम वेरी अप्रोचेबल टू ऑल ऑफ देम. सो मैं बैठ के दोनों से बात करता हूँ. मैं मिल बैठ के लड़ाई कर लो यहाँ पे, हाँ इस केबिन के बाहर एक होके जाना है, नहीं तो भाई मैं पूरी पूरी टीम को निकाल दूँगा. आई लव हाउ यू से पूरी की पूरी टीम को निकाल दूंगा, फिर यू कीप दैट और क्या मतलब यार, मतलब या तो साथ में काम कर लो, सोल्यूशन तो वही निकलेगा ना, या तो साथ में काम कर सही लो, बात है। या तो भाई तेरे को मैं कहीं और डालता हूँ. हाँ और अगर एकदम ही तुम लोग अड़ियल बन रहे हो तो भाई यू आर नॉट कल्चरली फिट. हम्म सिंपल है. बट आपको बहुत हायरिंग फायरिंग कल्चर है, मतलब ऐसा वैसे इन जनरल, मतलब यू गिव पीपल, मतलब सोच के हायर करते हो आप? बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अच्छा उसमें आप वो भी एक प्रॉब्लम है. कि अच्छा ही एम्प्लॉय हायर होना चाहिए, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस से ज्यादा, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट इज मोर प्रेफरेबल. या तो मेरे अगर रिज्यूमे में है ही वाज एन एंटरप्रेन्योर एंड इफ आई कैन प्रूव कि भाई हाँ उसने डिस्कशन से 1-2 साल हसलिंग की है, तो यार मेरे लिए तो ही वुड बी द बेस्ट हायर. व्हाट्स द सीक्रेट सॉस, या फिर व्हाट्स द वे आउट कि हमें अच्छी कोर टीम मिले, बिकॉज टीम इज रियली इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं होता यार. ऐसा कुछ शुरुआती नहीं? दिनों में तो आपको भीख मांगना पड़ता है कि भाई कि join कोई आ जाओ मेरे साथ करो. काम वहाँ पे करना. ऐसा नहीं होता है कि भाई तुमको तो कैसे जज करोगे, ऐसा नहीं होता भाई. मतलब अगर इफ आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी टुडे एंड व्हेन आई वाज लेट्स से 12 years back, तो आई वुड हैव बेग्ड यू कि भाई तू कि आ जाओ प्लीज ज्वाइन कर लो. स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करता कोई, जब तक फंडिंग नहीं है. हाँ जेन्युइन पीपल ओनली जॉइन्स. हाँ पर्सनली क्या पसंद है चीजें करना, मतलब व्हाट डू यू लाइक, व्हाट्स द मोस्ट एडवेंचरस थिंग दैट आई हैव डन दैट यू हैव डन? यार फन कुछ. I really love traveling. हाँ That's how I started this business of experiences and activities. Very few people know that I've traveled more than 70 countries now. And I took part in a long adventure हाँ where I drove a very small car, less than 1000 cc, from London to Mongolia. हाँ So it was a drive across 21 countries, हाँ covered almost 1/3 of the earth. वाओ. It was from London to Mongolia. हाँ Then I also did a couple of expedition in Africa, Scandinavian countries, South Asia. So yeah, I just love traveling. And जब भी I get super excited when people talk about traveling. अभी थोड़ा कम हो गया है after marriage. But yeah, I have a lot of very exotic, different travel plans in my head. I don't know when I'll do it. एक दो बताओ जॉब सही में करना चाहते Say हो. I want to go to South Pole. So it's a long and very tedious journey. Possible, a little costly. It would cost me somewhere around I think $40,000-50,000. But yeah, going to South Pole is one of my dream list, wish list. Other one is going for a shipwreck rally. कहाँ से लाते हो निकाल के कुछ तो अलग अलग. मैं सही में नहीं सुना कभी किसी से वर्ड की ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, बट ये नहीं कि कार में हम लोग कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं और साउथ पोल जाना है और ये सब. So I want to do that shipwreck rally is like you have to drive from the southernmost point of Americas, South America basically, which is Rio Galles in Argentina. I want to drive from there to Alaska. So that is like close to 40,000 miles. Might take around 3.5-4 months. 3.5-4 months. Yeah. अगर इतने महीने के लिए कुछ नहीं गायब हो जाए तो कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब सब लोग तो I don't know. बौखला जाएंगे ना.
No, I think अभी the team is I mean I would say that थोड़ा turbulence होगा but the team can take up. हाँ ऐसा नहीं है कि there will be very radical impact. हाँ समझ जाएगा मतलब ऐसा नहीं है temporarily होगा but the team will be able to manage it. And that's how by design I'm trying to make Zuzode. कि it should not need Kushal Agrawal. हाँ it should all just run off so I should पैसा। work. I try to only work on growth. कि यार अभी X को 2X कैसे करेंगे. right And my team can manage that X. हाँ And maybe much better than me. हो सकता है कि मैंने उनको छोड़ा नहीं है तो हाँ पता चलेगा एक मेरे को बार ऐसा लगता है कि I am doing better, but I feel that the team is equally capable to do that. मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानी क्योंकि सक्सेस सबके लिए अलग है किसी के लिए कुछ पैसे बन जाए वो सक्सेस है किसी के लिए मेरा ब्रांड सबको पता हो वो सक्सेस है तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट लाइक हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस कुशल के लिए क्या है सक्सेसफुल यार मतलब ना over a period of time the definition has changed a lot. हाँ पहले मुझे लगता था कि यार making money and people knowing you, हाँ which is nothing but fame, is the other name of success. But अभी मेरे को लगता है कि we all strive for that healthy life and happiness as success. तो मुझे अब थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट अंदर से मुझे फील होता है कि यार अगर आई एम हेल्दी माई फैमिली इज हेल्दी यू नो ऑल आर हैप्पी तो वो सक्सेस है मेरे लिए आज के डेट में. हाँ मतलब कंफर्टेबल अच्छी when लाइफ if my wife see this video she will always say कि यार इसको मैं इतना पुश कर रही हूँ कि you know focus on health and you know उसको समझ में नहीं आता है तो she will definitely kind of do that but अंदर से ऐसा लगता है कि health and happiness is the real success if I'm able to bring to my entire family. That is real success and yeah I'll try to मनी वाला कि उसमें आपको ज़्यादा now you don't want to feel like really be anxious about money. तो फिर अभी क्या नेक्स्ट स्टेप्स अगर मैं कुशल से पूछूं अगले 5 साल या 2 साल का क्या प्लान है ज़ोज़ोडे को लेके यूनिकॉर्न बनाना है क्या करना है एग्जिट करना है. yeah so I think we have IPO on cards. Post that I keep helping my entrepreneur community. I'll keep helping them. Some of my bets, early bets, I hope they perform better than me. There are, and I truly feel a couple of them will do well. And yeah I think I would like to contribute to my entrepreneur community moving ahead in some or the other way, either by investments, either by maybe advising them, helping them, because now I have learned what not to do. right तो उससे I feel super important. I have pitched to more than maybe 200-300 investors and I have been rejected by all of them. So that experience I have. रिजेक्शन को कैसे लेना तब तो आपको अच्छे से आता Yeah, है. So every time I was rejected by investors, I used to feel कि यार ऐसा क्या गलत बोला था मैंने. हाँ ऐसा क्या बोल दिया मैंने. And कई बार जब इन्वेस्टर्स के रैंडम रेस्पॉन्सेज आते थे तो मुझे फील होता था कि यार इतना बकवास बिजनेस है क्या मेरा. एंड जब एक इन्वेस्टर ने बोला था कि यार एवरीथिंग वाज राइट बस वो अंदर से फील नहीं थी तो आपको जब गुस्सा आता है बहुत ही अलग होता है. और आपको बहुत अच्छा भी लगता है जब आपने इन्वेस्टमेंट रेस कर लिया और वो कॉल करके बोल रहा है यार मैंने मिस किया यार. तो ऐसा बोला है मतलब आपको लगा है कभी कि कुछ लोगों को एक्चुअली ऐसा लगा है बाद में मिलके yeah. You get a very different feeling then. Then, Yeah, हाँ. yeah.
कि मैं तो पहले ही बोला, मुझे तो पता ही था कि ये चलेगा, पर आपको उस वक्त नहीं आया समझ। So yeah, it happens. हाँ, जाते जाते अर्ली स्टेज फाउंडर्स, यंग फाउंडर्स जो बिल्कुल आपकी उम्र में जैसे आपने स्टार्ट किया था, वो अभी अगर स्टार्ट करें उनके लिए कुछ टॉप 2-3 टिप्स अगर आप शेयर So I think number one, you should hear the market and customers very clear. Yeah, don't create a need which you feel is a need. You should understand categorically कि मार्केट की क्या नीड है और तुम क्या सोचते हो जो नीड है. वेरी क्लियर. द मार्केट की नीड में आपको फोकस करनी है. डोंट जस्टिफाई your idea on the basis of some random surveys. Right. That is my first advice. Second advice is it is okay to be me too. Well, not that harassment wala me too. कोई चीज अगर ऑलरेडी चल रही है बहुत business ज्यादा, में हाँ, it is okay to be me too. You can enter that, and it's better to be in me too because that idea or that product or that need is already validated. तो आपको फिर रिसर्च करने के लिए वो सब नहीं करना होगा. Number 3 is maintaining cash flow is super important. So you should not sit idle, working on some idea which you feel it will sell in future. Till then you should keep making money. I mean, this philosophy is very controversial also, but I feel that वो अंदर से ना आपको फिर फटीग आना शुरू हो जाएगा, आपको डिप्रेशन वगैरह आना शुरू हो जाएगा. तो you will have to keep making money. At least whatever you are spending, you should find way to earn. 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलता है यार, but over a bit of time now you will start feeling that harassment internally within you. So you have to find out way to make money. I mean, you have to mold your business which will make money. And ASAP. Business is not about raising funds. This is the fourth point. Business is not about raising money. Raising money. Business is all about making money. It's very important. वो अगर दिमाग में ये है कि यार बढ़िया स्टार्टअप चालू करता हूँ, कोई ना कोई फंडिंग दे देगा, और फिर उस पैसे को that is success. No, that is not. नहीं होता. लास्ट बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड जिनकी इन्होंने हमेशा बात की कि डरने का तो मतलब है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, और वो डर हमेशा रहेगा. तो उस डर की वजह से कुछ नहीं छोड़ना. कूद जाओ यार, कूद जाओ. And so sure. You yourself will understand कि यार धंधा बनेगा नहीं बनेगा. Just keep basics in place. Right. I love your attitude, Kushal. Very nice. So much I've learned today. मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे पता चली कि कैसे प्रेशर कुकर होके भी आप बिल्कुल वापस से zen मोड में जा सकते हो. इतना सारा because you have seen like this and then you have become like this. बहुत सारे फाउंडर आपकी कम्युनिटी में बहुत ऐसे बहुत स्ट्रेस भी लेते होंगे, and then I think मैं भी लेता हूँ. मेरा तो रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत बढ़ गया है, मतलब सच में, क्योंकि इतना सारा काम प्लस एक वो मतलब वही छाती ऑफ स्टील की जो भी है करते जाना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, तो वो मेरे को दैट हैज रियली टच्ड मी. सो कीप डूइंग सच गुड वर्क. और जाते जाते बस ये बता दो, हु डू यू लुक अप टू? ऐसे कौन आपको इंस्पायर करता है, कौन सी पर्सनैलिटी, कौन ऐसे हस्ती है जिनको आप बहुत मानते हो कि यार ये सही काम कर रहा है? I think I look up to my dad. I mean, he has faced lots and lots of hardship in life. I mean, he's a self-made man. He lost his mom when he was, less than I think 5 years old. And उन्होंने अपने सारे भाई बहन सबको उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया. My real grandfather was also kind of left my dad at that early age. So I look up to him. अकेले सब फिगर आउट किया उन्होंने? So पापा के रिश्तेदार who is my granddad now, मामा जी जो पापा के मामा जी, so he kind of raised him.
and all the kids. So yeah, I look up to my dad, those struggles and how he has It's not easy, of course. yeah, so I think I look up to him. इतने सारे इमोशनल टर्मोइल, इतने सारे challenges के बाद भी he ended up doing good. मतलब आप लोगों के लिए उन्होंने enough कर दिया कि आप अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे से कुछ आपको भी फील नहीं होती आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी My God, seriously, hats off to so many such fathers who are doing great. मतलब पूरा pillar of strength वो लोग बन रहे हैं और and my mom as well, so really supportive. हाँ, they never said कि यार मतलब ये मत करो वो मत करो. I mean, yeah, they used to compare. वो थोड़ा बहुत हमेशा चलेगा. But yeah, they always had that trust कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. तो मम्मी ने भी हमेशा पापा का भी और पूरे घर को बहुत ही सही से संभाला है इस पूरे सिचुएशन में. Hats off to mom and dad and good families and this whole startup community. Thank you so much. Thank you. मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलके.